السلام علیکم۔ آج ہم ایک بار پھر سے گہرائی میں اتر رہے ہیں اور اس بار ہم قرآن کے 5ویں پارے کے ایک حصے پر بات کریں گے۔ ہمارے پاس جو جانکاری ہے وہ اصل میں سورہ النساء کی آیت 23 سے آگے کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ فتح محمد جالندری صاحب کا کیا ہوا ہے اور ہمیں ٹرو اسلام نام کے یوٹیوب چینل کے ایک ویڈیو سے ملا ہے۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے کہ اس تفصیل میں جو ضروری باتیں ہیں، سماج کے لیے ہدایتیں ہیں یا جو گہری سمجھ والی باتیں ہیں، ان کو آسان ہندی زبان میں آپ تک پہنچایا جائے۔ جی ہاں، یہ ان سب کے لیے ہے جو ان تعلیمات کا نچوڑ، مطلب اس کا ایسنس سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو چلیے مل کر اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں پاریوارک اور سماجک رشتوں سے۔ اس میں نکاح یعنی شادی بیاہ کے نیموں پر کافی تفصیل ہے۔ سروت میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ کن رشتوں میں نکاح حرام ہے، مطلب منع ہے، جیسے ماں، بیٹی، بہنیں وغیرہ۔ جی ہاں، اور ایک اور اہم بات، جو پہلے سے شادی شدہ عورتیں ہیں ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ ایک عام اصول ہے۔ لیکن دیکھیں، اس میں خاص صورت کا بھی ذکر ہے۔ وہ عورتیں جو جنگ میں بندی بنا لی گئی ہوں، جنہیں باندیاں کہا گیا ہے۔ آیت کہتی ہے، اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ جو قید ہو کر باندیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں۔ یہ ظاہر ہے اس زمانے کے جو حالات تھے اس کے سندرب میں ایک نیم تھا۔ اچھا، اور اسی کے ساتھ نکاح میں مہر کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ ہاں، مہر یہ کیا ہوتا ہے؟ مہر وہ حق ہے جو شوہر کی طرف سے بیوی کو دیا جاتا ہے۔ اس کو طے کرنا اور ادا کرنا ضروری بتایا گیا ہے۔ اچھا، تو یہ طے کرنا اور دینا مطلب لازمی ہے؟ بالکل، سروت تو یہی کہتا ہے، لیکن اس میں تھوڑی نرمی بھی ہے۔ اچھا، اگر بعد میں پتی پتنی آپس کی خوشی سے، مطلب رضامندی سے طے کیے گئے مہر میں کچھ کم یا زیادہ کرنا چاہیں، ہاں، تو اس کی اجازت ہے۔ لکھا ہے آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اور پھر یاد دلایا گیا کہ اللہ سب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ مطلب ہر حکم کے پیچھے کوئی وجہ، کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور سچویشن کی بات ہوئی ہے کہ اگر کوئی مرد ہے اور وہ کسی آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی مالی طور پر یا کسی اور وجہ سے طاقت نہیں رکھتا، ہاں، تو اس کے لیے کیا آپشن ہے؟ جی ہاں، اس کے لیے بھی ذکر ہے۔ ایسے مرد کے لیے کچھ شرطوں کے ساتھ مسلمان باندیوں، یعنی جو اس وقت غلام عورتیں تھیں، ان سے نکاح کرنے کی اجازت کا ذکر ملتا ہے۔ شرطیں کیا ہیں؟ شرطیں یہ ہیں کہ پہلی بات، ان کے مالکوں کی رضامندی ہو۔ دوسرا، انہیں رواج کے مطابق مہر بھی دیا جائے۔ اور سب سے ضروری شرط کہ وہ عورتیں پاک دامن ہوں، مطلب بد کردار نہ ہو، نہ خلم کھلا، نہ چوری چھپے۔ اچھا، پاک دامن ہونا ضروری ہے۔ جی، آیت میں صاف ہے، بشرطے کہ وہ پاک دامن ہوں۔ اور اگر فرض کریں ایسی عورتیں نکاح کے بعد کوئی غلطی کر بیٹھیں، کوئی گناہ، تو سروت کے مطابق ان کی سزا جو ہوگی وہ آزاد عورت کی سزا سے آدھی ہوگی۔ لیکن یہ بھی دھیان رکھنے کی بات ہے کہ یہ جو اجازت ہے باندی سے نکاح کی، یہ خاص طور پر اس مرد کے لیے ہے جسے نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں پڑ جانے کا بہت زیادہ ڈر ہو۔ اچھا، سب کے لیے نہیں ہے یہ؟ نہیں، بلکہ نصیحت تو یہی ہے کہ صبر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ بات کہ صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر اللہ کی رحمت کا ذکر ہے کہ وہ معاف کرنے والا، مہربان ہے۔ چلیے اب ایک ایسے مدعے پر آتے ہیں جس پر اکثر کافی بحث بھی ہوتی ہے، وہ ہے پتی پتنی کے بیچ اگر مت بھید ہو جائیں یا پتنی کی طرف سے نافرمانی، جسے سرکشی کہا گیا ہے، وہ ظاہر ہو، شروط اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، شروط شوہر کے لیے کچھ سٹیپس بتاتا ہے اگر اسے بیوی کی طرف سے نافرمانی کا ڈر ہو یا وہ دیکھے۔ پہلا قدم ہے نرمی سے سمجھانا، بات چیت کرنا۔ اگر اس سے بات نہ بنے تو دوسرا قدم ہے بستر الگ کر لینا، مطلب تعلقات میں ایک دوری پیدا کرنا۔ اور اگر اس سے بھی معاملہ نہ سدھرے تو تیسرے قدم کے طور پر ہلکی سزا، جسے زد وقوب کرو کہا گیا ہے، اس کا ذکر ہے۔ یہ واقعی ایک نازک مسئلہ ہے۔ کیا اس میں صلح صفائی کی کوئی گنجائش بتائی گئی ہے؟ بالکل، اور اصل زور اسی پر ہے۔ کہا گیا ہے کہ اگر بیوی مان جائے، صحیح راستے پر آ جائے، تو پھر شوہر کو اسے تنگ کرنے یا نیچا دکھانے کا کوئی بہانہ نہیں تلاشنا چاہیے۔ اگر تمہارا کہنا مان لیں تو پھر ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو۔ اچھا، اور اگر جھگڑا بہت بڑھ جائے، آپس میں سلجھانا مشکل ہو جائے، تو اس کا بھی ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ وہ یہ کہ دونوں کے خاندان سے، مطلب شوہر کے خاندان سے اور بیوی کے خاندان سے ایک سمجھدار آدمی مقرر کیا جائے۔
मुंसिफ कहा गया उन्हें, मतलब जज या मध्यस्थ की तरह। और अगर ये दोनों मुंसिफ नेक नियति से सुलह कराना चाहेंगे तो अल्लाह उनकी मदद करेगा और उनमें इत्तेफाक पैदा कर देगा। तो असल मकसद रिश्ते को बचाना और इंसाफ करना है। इसी से जुड़ी हुई एक और बात है, मर्दों की भूमिका। स्रोत में कहा गया है कि मर्द औरतों पर कवाम है, मर्द औरतों पर हाकिम है। ये जो लफ्ज है कवाम या हाकिम, इसका क्या मतलब लेना चाहिए? हाँ, ये एक अहम नुक्ता है। कवाम का मतलब सिर्फ हुक्म चलाने वाला नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि इसका मतलब ज्यादा बेहतर है निगरान, देखभाल करने वाला, व्यवस्थापक या जिम्मेदार। और स्रोत इसकी दो वजह भी बताता है। अच्छा, क्या वजह है? एक तो ये कि अल्लाह ने अपनी हिकमत से कुछ लोगों को दूसरों पर फजीलत दी है, मतलब मर्दों को कुछ खासियतें दी हैं, चाहे वो जिस्मानी हो या दूसरी। और दूसरी वजह ये कि मर्द अपना माल, अपनी कमाई अपने घर वालों पर खर्च करते हैं, यानी आर्थिक जिम्मेदारी उठाते हैं। तो ये सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी की बात ज्यादा है। बिल्कुल, ये एक जिम्मेदारी वाली भूमिका है। और देखिए, इसी के फौरन बाद नेक बीवियों की खूबियां भी बताई गई हैं। हाँ, क्या बताया गया है? कि वो फर्माबरदार होती है, मतलब शौहर की बात मानती हैं जो सही हो, और उनकी गैर मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत में घर की, माल की और अपनी इज्जत की खबरदारी करती हैं, हिफाजत करती हैं। तो यहाँ एक तरह से आपसी ताल्लुक और जिम्मेदारियों का एक ताना बाना नजर आता है। ये तो हुई घर की बात। क्या समाज के जो दूसरे लोग हैं उनके साथ कैसे रहना है, इस बारे में भी कुछ हिदायतें हैं? हाँ, और इस पर तो बहुत ही ज्यादा जोर है। सबसे पहले बात तो वही कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और किसी को उसका शरीक ना बनाओ। और इसके फौरन बाद माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करने का हुक्म है। अच्छा, फिर तो लिस्ट काफी लंबी है। रिश्तेदार हैं, यतीम हैं, मिस्कीन यानी जरूरतमंद लोग हैं, पड़ोसी हैं। पड़ोसियों में भी फर्क किया है? हाँ, पड़ोसी चाहे रिश्तेदार हों या अजनबी, दोनों के साथ अच्छा सुलूक। फिर साथ उठने बैठने वाले दोस्त, अहबाब, मुसाफिर और वो लोग जो किसी के मातहत हों, जैसे पहले ज़माने में ग़ुलाम होते थे या आज के दौर में कर्मचारी हो सकते हैं, उन सब के साथ हुस्ने सुलूक यानी अच्छा बर्ताव करने का हुक्म है। यानी दायरा बहुत बहुत वसी रखा गया है। जी, और जिन चीज़ों से सख्ती से रोका गया है उनमें दो खास हैं। एक है तकब्बुर यानी घमंड करना और शेखी बगारना, और दूसरा है बुख्ल यानी कंजूसी। कंजूसी? हाँ, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो खुद भी घमंडी हों और दूसरों के सामने अपनी बड़ाई मारें, और साथ ही कंजूस हों या दूसरों को भी कंजूसी सिखाएं, या अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उन्हें छुपा कर रखें। ये चीज़ें मतलब सामाजिक ताल्लुकात की बुनियाद को कमज़ोर करती हैं। ठीक है, ये तो हुई पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की बात। अब जरा आर्थिक मामलों पर आते हैं। क्या इस बारे में भी कोई गाइडेंस है? हाँ बिल्कुल, एक बहुत बुनियादी उसूल बताया गया है। वो ये कि एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से ना खाओ, एक दूसरे का माल नाहक ना खाओ। नाहक मतलब धोखे से या जबरदस्ती से या जैसे रिश्वत वगैरह है, या इन तरीकों से बचना चाहिए। तो फिर जायज तरीका क्या है कमाई का? जायज तरीका है आपसी रजामंदी से होने वाला लेन देन या तिजारत यानी बिजनेस। तिजारत का लेन देन, इससे अगर फायदा हो तो वो हलाल है, जायज है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि अपने आप को या एक दूसरे को हलाकत में ना डालो। हलाकत में ना डालो, इसका क्या मतलब? इसके कई मतलब हो सकते हैं। अपनी जान को खतरे में डालना भी हो सकता है, या शायद अपने ईमान को, अपने दीन को खराब करना भी इसमें शामिल हो सकता है। अल्लाह रहम करने वाला है। विरासत यानी मिरास के बारे में क्या नियम है? जमीन जायदाद के बंटवारे के बारे में? उसके बारे में भी बहुत वाज़ेह यानी क्लियर हिदायत है कि जब माँ बाप या करीबी रिश्तेदार कोई माल या जायदाद छोड़कर मरे तो उसे उनके हकदारों में तकसीम करने यानी बांटने का हुक्म है। हाँ। और ये भी कहा गया है कि अल्लाह ने खुद हर वारिस का हिस्सा मुकर्रर कर दिया है। हमने हर एक के हकदार मुकर्रर कर दिए हैं। अच्छा, हिस्से तय हैं। जी, इससे ये होता है कि जायदाद सिर्फ कुछ ही लोगों के पास जमा ना हो जाए, बल्कि हर हकदार को उसका हिस्सा मिले। और अगर किसी से कोई वादा किया हो, कोई एग्रीमेंट या अहद, उसे पूरा करने की बहुत ताकीद है। कहा गया है कि जिन लोगों से तुमने अहद यानी कोई पैमान, कोई वादा किया है, उनको भी उनका हिस्सा दो, मतलब अपना वादा निभाओ। और ये याद दिलाया गया है कि अल्लाह हर चीज पर निगाह रखे हुए है, वो सब देख रहा है। माल खर्च करने के बारे में कोई खास नसीहत है? कैसे खर्च करें? हाँ, एक चीज की बहुत मजम्मत की गई है, बुराई बयान की गई है। कोई खास कौन? वो है दिखावे के लिए खर्च करना। लोगों के दिखावे को दिखावा। जी, कहा गया है कि ऐसा वो लोग करते हैं जिनका अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर सही मायने में ईमान नहीं होता, और शैतान ऐसे लोगों का साथी बन जाता है, और शैतान तो बहुत बुरा साथी है। इसके बजाय अल्लाह की राह में नेक कामों में जरूरतमंदों पर खर्च करने की
तरगीब दी गई है, हौसला बढ़ाया गया है। ये सारे नियम कायदे समाज को, व्यक्ति के जीवन को एक तरह से मुनज़्ज़म करने के लिए लगते हैं, लेकिन इन सब के पीछे यकीनन ईमान का, अकीदे का एक मजबूत बेस होगा। बिल्कुल, सबसे बुनियादी और पहली शर्त ही यही है कि सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाए और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। अल्लाह ही की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज को शरीक ना बनाओ। ये है तौहीद, इस्लाम की बुनियाद। और शिर्क? शिर्क यानी अल्लाह के साथ किसी और को साझीदार मानना, उसको सबसे बड़ा गुनाह बताया गया है। इतना बड़ा कि अल्लाह इस गुनाह को माफ नहीं करेगा अगर इंसान बिना तौबा किए मर जाए। अच्छा। हाँ? इसके अलावा जो दूसरे गुनाह हैं अल्लाह जिसे चाहेगा माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क की माफी तौबा के बिना नहीं। अल्लाह इस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को उसका शरीक बनाया जाए। ईमान में और क्या चीजें जरूरी बताई गई हैं? अल्लाह पर ईमान, उसके रसूलों पर ईमान, उसकी किताबों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान और यौम आखिरत यानी क़यामत के दिन पर ईमान लाना, ये सब जरूरी बताया गया है। और जो इन चीजों का इनकार करता है उसे कहा गया है कि वो बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा। अल्लाह और रसूल की बात मानने, उनकी फर्मा बरदारी करने के बारे में क्या जिक्र है? इस पर तो बहुत ही जोर है। साफ हुक्म मोमिनों को अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करो। और साथ ही ये भी कहा गया है कि मुसलमानों में जो उलिल अम्र हों। उलिल अम्र मतलब जो जिम्मेदार लोग हों, साहिब इख्तियार हों, हुकूमत वाले हों, उनकी बात भी मानने का हुक्म है, लेकिन एक शर्त के साथ, जब तक वो अल्लाह और उसके हुक्म के खिलाफ कोई बात ना कहें। अच्छा, और अगर आपस में किसी बात पर इख्तिलाफ हो जाए, कोई मतभेद, ये तो अक्सर होता ही है। हाँ बिल्कुल। और इसका भी हल बताया गया है। हुक्म ये है कि अगर किसी मामले में मुसलमानों के बीच ना इत्तेफाकी यानी डिसएग्रीमेंट हो जाए, तो उस मामले को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाओ। अल्लाह और रसूल की तरफ लौटाने का मतलब ये कि देखो कुरान इस बारे में क्या कहता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत या तालीमात क्या हैं। अगर किसी बात में तुम में इख्तिलाफ वाक़े हो तो उसमें अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की तरफ रुजू करो। और शर्त ये है कि ऐसा तब करो अगर तुम अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हो। इसी को सबसे बेहतर तरीका बताया गया है और अंजाम के लिहाज से भी सबसे अच्छा कहा गया है। ये एक तरह से फैसला करने का, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का बुनियादी उसूल तय कर देता है। ये बहुत अहम बात है। अच्छा, स्रोत में कुछ ऐसे लोगों का भी जिक्र है जो मतलब ईमान का दावा तो करते हैं पर उनका अमल उसके उलट होता है। हाँ, मुनाफिकों का जिक्र है, पाखंडी जिन्हें कह सकते हैं। उनकी एक निशानी ये बताई गई है कि वो जबान से तो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और रसूल पर ईमान लाएं, लेकिन जब कोई फैसला कराने का वक्त आता है, कोई झगड़ा होता है, तो वो अल्लाह और रसूल के हुक्म के बजाय तागूत की तरफ जाना चाहते हैं। तागूत ये क्या है? तागूत हर उस ताकत को कह सकते हैं जो अल्लाह के मुकाबले में खड़ी हो या उसकी नाफरमानी पर उभारे। शैतान भी तागूत है, या कोई जालिम हुक्मरान, या कोई भी ऐसी चीज जिसकी अल्लाह को छोड़कर इबादत या इताअत की जाए। तो मुनाफिक चाहते हैं कि अपना मुकदमा ऐसी ताकतों के पास ले जाएं, हालांकि उन्हें हुक्म यही दिया गया था कि तागूत का इनकार करें। उनका रवैया कैसा होता है ऐसे लोगों का? दोहरा रवैया, डबल स्टैंडर्ड। जब उन्हें कहा जाता है कि आओ अल्लाह के हुक्म की तरफ और रसूल की तरफ आओ, तो वो कतराते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। और जब उन पर कोई मुसीबत आती है, शायद उनके अपने ही कर्मों की वजह से, तो फिर वो कस्में खाकर आते हैं कि जी हमारा इरादा तो सिर्फ भलाई का था, हम तो बस मेल मिलाप कराना चाहते थे। अल्लाह कहता है कि वो उनके दिलों की बातें जानता है। नसीहत ये दी गई है कि उनसे थोड़ी दूरी रखो, उन्हें समझाओ भी, लेकिन उनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उनका अंजाम बहुत बुरा बताया गया है, जहन्नुम का सबसे निचला दर्जा। और मोमिनों को ख़ास हिदायत है कि वो मुसलमानों को छोड़कर काफिरों या मुनाफिकों को अपना मतलब जिगरी दोस्त ना बनाएं। इबादतों में नमाज का तो बहुत ही अहम मकाम है, उसके बारे में क्या हिदायतें हैं इस हिस्से में? हाँ, नमाज के बारे में कई ज़रूरी बातें बताई गई हैं। एक तो ये कि नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाओ, मतलब जब तक ये होश ना आ जाए कि तुम क्या पढ़ रहे हो। अच्छा। जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के पास ना जाओ। दूसरे, जनाबत की हालत में, यानी जब गुस्ल करना फ़र्ज हो जाए तो बिना गुस्ल किए नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। हाँ, अगर सफ़र में हो और पानी ना मिले वो अलग बात है। और अगर पानी ना मिले तो, या कोई बीमार हो, पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो क्या करे? उसके लिए तयम्मुम का हुक्म है। तयम्मुम? जी, यानी अगर कोई बीमार है या सफ़र में है या शौच वगैरह से फारिग हुआ है या बीवी से मिलाप किया है
और गुस्ल या वुजू के लिए पानी नहीं मिल रहा तो पाक मिट्टी या मिट्टी जैसी कोई चीज जैसे पत्थर या रेत उस पर हाथ मारकर चेहरे और हाथों का मसा कर ले, मतलब पोंछ ले। ये वुजू और गुस्ल दोनों के बदले में काफी है। और फिर कहा गया है कि अल्लाह माफ करने वाला, बख्शने वाला है, वो आसानी चाहता है। सफर में नमाज के लिए कोई और आसानी भी बताई गई है? हाँ, सफर के दौरान खासतौर पर जब दुश्मन का डर हो तो नमाज को छोटा करने यानी कसर करने की इजाजत है। 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात पढ़ना। जब तुम सफर को जाओ तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि नमाज को कम करके पढ़ो। और जंग की हालत में जब लड़ाई हो रही हो? उसके लिए नमाज अदा करने का एक खास तरीका बताया गया है। उसे नमाज खौफ कहते हैं, यानी खौफ की नमाज। इसमें फौज के 2 ग्रुप बना लिए जाते हैं। एक ग्रुप इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है, जबकि दूसरा ग्रुप हिफाजत करता है। फिर वो लोग नमाज पढ़ते हैं और पहले वाले हिफाजत करते हैं, ताकि इबादत भी हो जाए और दुश्मन से बचाव भी रहे। हथियार साथ रखने का भी हुक्म है। नमाज खत्म करने के बाद क्या हिदायत है? नमाज खत्म करने के बाद भी अल्लाह को याद करते रहने का हुक्म है। खड़े हुए, बैठे हुए, लेटे हुए, हर हाल में, खड़े और बैठे और लेटे हर हालत में अल्लाह को याद करो। और ये भी याद दिलाया गया है कि नमाज मोमिनों पर तय वक्तों पर अदा करना फ़र्ज है। नमाज का मोमिनों पर औकात मुकर्ररा में अदा करना फ़र्ज है, मतलब इसकी पाबंदी बहुत ज़रूरी है। समाज में इंसाफ, जस्टिस का होना बहुत ज़रूरी है। इंसाफ और गवाही के बारे में क्या बताया गया है? इस पर तो समझिए बहुत ही सख्ती से जोर दिया गया है। हुक्म है कि इंसाफ पर मजबूती से कायम रहो, इंसाफ पर कायम रहो, और गवाही दो तो सिर्फ अल्लाह के लिए दो, सच्ची गवाही। चाहे वो गवाही तुम्हारे अपने खिलाफ जाती हो, या तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ हो, या तुम्हारे करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। मतलब इंसाफ का तकाजा हर रिश्ता, हर ताल्लुक से ऊपर है। बिल्कुल, यही कहा गया है। और ये भी हिदायत है कि गवाही देते वक्त ये नहीं देखना चाहिए कि जिसके हक में या जिसके खिलाफ गवाही दी जा रही है वो अमीर है या गरीब, क्योंकि अल्लाह उन दोनों का तुमसे ज्यादा खैर ख्वाह है, भला चाहने वाला है। तो अपनी ख्वाहिशों की पैरवी में, मतलब अपनी मर्जी के पीछे पड़कर इंसाफ से हटना मना है। और अगर तुमने गवाही में हेरफेर की या सच छुपाया तो याद रखो कि अल्लाह तुम्हारे हर अमल से वाकिफ है। और किसी पर झूठा इल्जाम लगाने के बारे में? किसी बेगुनाह पर झूठा इल्जाम लगाना उसे बुहतान कहा गया है। और ये बहुत बड़ा गुनाह और खुला जुल्म करार दिया गया है कि अगर कोई गुनाह खुद करे और उसका इल्जाम किसी बेकसूर पर डाल दे तो उसने अपने सर पर बुहतान और खुले गुनाह का बहुत बड़ा बोझ लाद लिया। समाज में कई बार टकराव की, कॉन्फ्लिक्ट की, संघर्ष की स्थिति भी पैदा होती है। क्या इस बारे में भी कोई मार्गदर्शन है जिसे अक्सर लोग जिहाद के लफ्ज से जानते हैं? हाँ, श्रोत में अल्लाह की राह में लड़ने यानी जंग करने का जिक्र है। अल्लाह की राह में जंग करें। और उन लोगों को खास तौर पर उभारा गया है जो दुनिया की जिंदगी के बदले आखिरत को खरीदना चाहते हो, उसे पाना चाहते हो। किन हालात में या किसके खिलाफ लड़ने की बात कही गई है? खास तौर पर जुल्म के खिलाफ और उन कमजोर बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों की हिफाजत के लिए लड़ने का एक तरह से आह्वान है, पुकार है, जो जालिमों के हाथों में फंसे हुए हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि हमें इस जालिम बस्ती से निकाल और हमारे लिए कोई मददगार भेज। अच्छा, अल्लाह की राह में और उन बेबस मर्दों और औरतों और बच्चों की खातिर नहीं लड़ते तो इसे जुल्म के खिलाफ एक ज़रूरी जद्दोजहद के तौर पर पेश किया गया है। एक और नुक्ता ये बताया गया है कि जो मोमिन हैं वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं और जो काफिर हैं वो तागूत की राह में लड़ते हैं। इसलिए मोमिनों को हुक्म दिया गया है कि वो शैतान के साथियों से लड़ें और शैतान की चालें कमज़ोर होती हैं। लड़ने वालों के लिए बहुत बड़े अज्र यानी सवाब का वादा है, चाहे वो शहीद हो जाएं या जीत हासिल करें। और जो लोग बिना किसी सही वजह के, जैसे कोई बीमारी या मजबूरी ना हो, और वो लड़ाई से जी चुराते हैं, पीछे बैठे रहते हैं, उन्हें अल्लाह की राह में अपनी जान और माल से जिहाद करने वालों के बराबर दर्जा नहीं दिया गया है। हालांकि अल्लाह ने सबसे भलाई का वादा किया है, लेकिन दर्जा लड़ने वालों का बुलंद है। क्या लड़ाई के दौरान भी कुछ उसूल, कुछ नियम बताए गए? हाँ, कुछ अहम नियम हैं। जैसे अगर तुम अल्लाह की राह में सफ़र पर निकलो यानी जिहाद के लिए, तो तहकीक किया करो, मतलब जल्दबाजी मत करो। और अगर दुश्मन की तरफ से कोई तुम्हें सलाम करे या अमन का पैगाम दे तो फौरन ये कहकर उस पर हमला ना कर दो कि तुम मोमिन नहीं हो। अच्छा जी, दुनिया की जिंदगी का थोड़ा सा सामान हासिल करने के लिए ऐसा ना करो, बल्कि तहकीक करो, जांच पड़ताल करो। जो शख्स तुमको सलाम करे उससे ये ना कहो कि तुम मोमिन नहीं हो। इसी तरह कत्ल के बारे में भी नियम है।
اگر کسی مومن سے غلطی سے کوئی دوسرا مومن قتل ہو جائے انجانے میں؟ ہاں، تو اس کا کفارہ یعنی پرائشچت ہے وہ یہ کہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور مرنے والے کے گھر والوں کو خون بہا یعنی دیت یا معاوضہ دے۔ ہاں، اگر وہ خود ہی معاف کر دیں تو اور بات ہے۔ اور اگر جان بوجھ کر قتل کرے تو؟ اگر کوئی جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے تو اس کی سزا بہت ہی سخت بتائی گئی ہے، ہمیشہ کی جہنم، اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت اور بہت بڑا عذاب۔ ہجرت یعنی ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا۔ جی، ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے، بلائی کی گئی ہے جو ظلم سہتے رہتے ہیں اور ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں وہ اپنے دین پر، اپنے ایمان پر ٹھیک سے عمل نہیں کر پاتے اور پھر بھی وہاں سے ہجرت نہیں کرتے، یعنی اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاتے۔ بتایا گیا ہے کہ جب فرشتے ایسے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے، بے بس تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، پھیلی ہوئی نہیں تھی کہ تم اس میں کہیں ہجرت کر جاتے؟ اللہ کا ملک فراغ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا ہے۔ ہاں، وہ لوگ جو واقعی مجبور ہیں، بے بس ہیں، مرد، عورتیں، بچے، جن کے پاس نہ ہجرت کرنے کی طاقت ہے نہ کوئی راستہ سوچتا ہے، وہ معذور ہیں۔ اللہ انہیں معاف کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی ہجرت کے ارادے سے نکلے اللہ اور رسول کے لیے اور راستے میں ہی اس کی موت ہو جائے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے، اس کا اجر پکا ہو گیا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑا، پھر اسے راستے میں موت آ گئی تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہو چکا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورت میں اہل کتاب کا بھی ذکر ہے، یعنی جو پہلے کی آسمانی کتابیں تھیں جیسے تورات اور انجیل، ان کو ماننے والوں کا۔ یہاں خاص طور پر کچھ یہودیوں کے رویے کا ذکر ہے۔ ہاں، کیا بتایا گیا ہے؟ ان کے بارے میں کچھ باتیں کہی گئی ہیں، جیسے کہ ان میں سے کچھ لوگ اللہ کے کلام کو یعنی آسمانی کتاب کے الفاظ کو ان کی صحیح جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، ان میں رد و بدل کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے سنا لیکن مانتے نہیں، اور زبان کو توڑ مروڑ کر دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ بتوں پر اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور دوسروں سے مطلب مومنوں سے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں کہ اللہ نے ان پر اپنا فضل کیوں نازل کیا۔ انہیں نصیحت کی گئی ہے کہ انجام آنے سے پہلے صحیح راستے پر آ جائیں، ایمان لے آئیں۔ ان تمام ہدایتوں اور نعموں کے ساتھ ساتھ کیا اللہ کی جو صفات ہیں، اس کے جو گن ہیں، ان کا بھی ذکر بار بار آتا ہے؟ ہاں بالکل، پورے پاٹھ میں جگہ جگہ اللہ کے علم یعنی اس کے گیان کے کامل ہونے پر زور ہے کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز سے واقف ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی شکتیمان ہے، وہ حکمت والا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ انسان کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی بات، کوئی بھی نیت اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور اس کے انصاف اور اس کی رحمت کے بارے میں یہ بھی بہت صاف کیا گیا ہے کہ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی کی ذرہ بھر بھی حق تلفی نہیں کرتا۔ اگر کوئی ذرا سی بھی نیکی کرتا ہے تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور اپنی طرف سے خاص انعام بھی عطا کرتا ہے، اور وہ غفور اور رحیم ہے، یعنی بہت بہت معاف کرنے والا اور بہت مہربان ہے، بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ یہ صفات بار بار دہرائی گئی ہیں۔ قرآن کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ اسے ہدایت کا ذریعہ بتایا گیا ہے اور لوگوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اس میں غور کریں، سوچ وچار کریں۔ بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ایک دلیل یہ بھی دی گئی ہے کہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سے اختلافات یعنی ورودابھاس پائے جاتے، کنٹراڈکشنز ہوتے۔ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں وہ بہت سا اختلاف پاتے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور آخر میں شیطان کے بارے میں کیا چیتاونی دی گئی ہے؟ شیطان کو انسان کا کھلا دشمن بتایا گیا ہے۔ وہ انسانوں سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، انہیں غلط امیدیں دلاتا ہے اور انہیں بہکاتا ہے، لیکن اس کے وعدے وہ صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہیں۔ جو کچھ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست یا سرپرست بناتا ہے وہ کھلے خسارے میں ہے، کھلے نقصان میں ہے۔ تو آج ہم نے قرآن کے اس حصے سے دیکھیں کتنی ساری اہم باتیں سمجھنے کی کوشش کی۔ پریوار اور شادی کے نیم ہیں، پتی پتنی کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں ہیں، سماج میں دوسروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے،
مالی لین دین کے اصول ہیں، وراثت کے قانون ہیں، پھر ایمان کی بنیادیں ہیں، توحید، شرک سے بچنا، آخرت پر ایمان، اللہ اور رسول کی اطاعت ہے، منافقت کی پہچان اور اس سے بچنے کی ہدایت ہے، نماز کی اہمیت اور اس کے نیم ہیں، انصاف اور سچی گواہی پر کتنا زور ہے، ضرورت پڑنے پر ظلم کے خلاف کھڑے ہونے یعنی جہاد کی ہدایت ہے، ہجرت کا حکم ہے، اور اللہ کی صفات، اس کا علم، اس کی رحمت اور اس کا مارگدرشن، یہ سب باتیں سامنے آئیں۔ ہاں، اور اگر ہم ان سب کو ایک بڑی تصویر میں دیکھیں تو یہ بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ یہ تعلیمات، یہ ہدایتیں صرف نجی عبادت یا صرف عقیدے تک ہی محدود نہیں ہیں۔ ان کا تعلق تو زندگی کے ہر پہلو سے ہے۔ سماج کیسے چلے گا، رشتے کیسے نبھیں گے، انصاف کیسے قائم ہوگا، مالی معاملے کیسے طے ہوں گے، اور ایک نیک اور مضبوط کمیونٹی کیسے وجود میں آئے گی۔ یہ ایک طرح سے زندگی گزارنے کا ایک مکمل نظام، ایک پورا سسٹم پیش کرتی ہیں۔ اور ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ جو شروت سامگری شروتا نے ساجھا کی ہے اس کی ایک واضح اور جہاں تک ممکن ہو آسان سمجھ پیش کی جا سکے تاکہ اس کے پیغام کو آسانی سے سمجھا جا سکے۔ جی، یہ آیت واقعی سماج اور ایمان کے لیے بہت سی تفصیلات اور نیم بتاتی ہیں، اور یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا صرف ان ہدایتوں کو جاننے سے آگے بڑھ کر ان خاص نیاموں کے پیچھے جو مقصد چھپا ہے، جو وجہیں ہیں، اور ان کے پیچھے جو گہری اخلاقی یعنی نیتک اور روحانی یعنی آدھیاتمک قدریں، جو ویلیوز کام کر رہی ہیں، ان پر غور کرنے سے، ان پر وچار کرنے سے ہماری سمجھ اور زیادہ گہری نہیں ہو سکتی؟ یقیناً اس پر سوچنے اور غور کرنے کے لیے بہت کچھ ہے،